Good morning, class 9 students. This is your biology teacher, Agrima Rawat. Hope everybody is enjoying this period and studying well. Okay, so now we are going to talk about a chapter that is the chapter number 5, that was Fundamental Unit of Life. In this chapter, previously we have learned about the cell, the discovery of cell, the components of cell. And the component of cells, we have covered the plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm. Now we are going to talk about the things that are floating in the cytoplasm, that things are performing different functions. Okay, they are called as cell organelles. Now, to understand cell organelles, just understand our body first. Our body is having different organs, like our brain is one organ, our heart is one organ, lungs, stomach. They are different organs. They are performing different functions, right? Brain is helping us to think, to control our other body part. The heart is pumping the blood, the stomach is digesting food. They all are doing different things, but these all different things are combining to maintain our functioning of the body. Same as it is inside a cell, different organelles are performing different functions. Okay, so these are called as cell organelles. We are going to talk about them. In this picture also you can see that plasma membrane is there. This is an animal cell, so plasma membrane is there. Then inside it, the cytoplasm is there, and inside the cytoplasm you can see many different organelles that are floating on it. They are having different function. In this plant cell also you can see that there is cell wall, there is plasma membrane. Then inside it there are different organelles that are floating in the cytoplasm. Okay, so we are going to talk about these organelles. The first organelle that we are going to talk about is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum, we can understand it by this picture. Okay, just see this picture. In this you can see that this is the nucleus. Okay, this circular thing, this is the nucleus. Around this there are some sheets like structure. शीट जैसी हैं, दिख रहा है आपको? ये शीट्स फोल्ड हो रखी हैं. Okay, this red thing. Then after this you can see some tube structures. Okay, just see it very carefully. The nucleus is here, and then sheets are here, then other after that tubes are here. Okay, so these are the endoplasmic reticulum. Now, endoplasmic reticulum is called as a cytoplasmic framework that provides a surface for the biochemical activities of the cell. Cytoplasmic framework, what does it mean? Cytoplasmic framework एक ढांचा provide कर रहा है. ठीक है, जैसे like in our body the skeleton is providing a framework. Same as it is, the endoplasmic reticulum is giving a cytoplasmic framework to the cell, and on this many biochemical activities happens. Biochemical activities, the biological activities that are forming some chemicals. They are the biological chemical activities are happening. Okay, and these are having the tubes and sheets that you have seen, that they are of shape of sheets and tubes. Now, endoplasmic reticulum is of two types: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. You can see it from this picture, this sheet like structure. You can see that this red sheet like structure is having some dot thing on it. This dot thing is ribosomes. Okay, what are these ribosomes? Now just understand the function of ribosome first. Ribosomes function is to manufacture protein. मतलब राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन. ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम क्या हो गया? टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. ओके, नाउ on this side you can see the yellow structures. These are the tube structures. These are not having any dot like structures on it, so they are called as smooth endoplasmic reticulum. As you can see, there is no
nothing on its surface, so it is very smooth. That's why it is named as smooth endoplasmic reticulum. Now because they are not having any ribosomes, so they are not going to perform any synthesis of protein, ये कोई protein नहीं बनाएंगे, but they are going to manufacture lipids. Okay, as you can see in here. Okay, just understand it. The rough endoplasmic reticulum is called as rough because of the presence of ribosomes, and ribosomes perform the manufacturing of protein, and smooth endoplasmic reticulum manufacture lipids. Clear about it? So this was the endoplasmic reticulum, or we called it as in short ER. Okay, and rough endoplasmic reticulum are called as RER, and smooth endoplasmic reticulum SER in short. Now what are the function of all in all function of endoplasmic reticulum? So endoplasmic reticulum, first thing we have talked about that it acts as a cytoplasmic framework, okay, that performs many biochemical activities. Second thing, it forms an intracellular transport system, means from one cell to another cell, if something has to be transported, that transportation is going to supported by the endoplasmic reticulum. Second thing, if in between the nucleus and the cytoplasm, right, this is the nucleus, and here something will be the cytoplasm will be here, right? Yeah. So if this thing from nucleus to cytoplasm, something has to come, protein has to move, so it will move through the endoplasmic reticulum, right? And if something has to move inside the cytoplasm के अंदर कुछ चीज़ प्रोटीन्स वगैरह को मूव करना है, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस चीज़ में भी हेल्प करेगा. Okay, next thing we have talked about that RER manufacture protein and SER manufacture lipid. So in previous lectures also we have talked about it that plasma membrane is made up of lipid and protein. This lipid and protein that are making the plasma membrane, that is formed by the SER and RER. Okay, this protein and lipid, these are formed by the SER and RER that are helping in the manufacturing of the plasma membrane. This whole process is called as membrane biogenesis. membrane मतलब plasma membrane, biogenesis मतलब उसका बनाना, plasma membrane को बनाने का process is called as membrane biogenesis. Okay, next thing, the lipid and protein that are manufactured by RER and SER, they function as enzymes and hormones. Now what are enzymes and hormones? Enzyme are also there in our body. Enzymes हमारी स्टमक में होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. हार्मोन्स, आपने हार्मोन्स सुने होंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे इंसुलिन, जिससे डायबिटीज़, जिसकी कमी की वजह से आपके डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो भी एक हार्मोन है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन? एंजाइम supports any activity to get it faster or slower. एंजाइम किसी भी कोई रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ाने में काम करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है पूरी तरह से. जबकि हार्मोन किसी भी रिएक्शन को होना है तो उससे पहले उसको एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, कि अगर कोई काम होना है तो बताएगा कि हाँ अब ये काम होना है. हार्मोन का काम ये है सिर्फ. ठीक है. जबकि एंजाइम्स उस फंक्शन को करवाता है पूरा. ओके. Next thing, the invertebrates. Now what are vertebrates? Vertebrates are those those animals you can say that are having vertebral column. आपका रीढ़ की हड्डी होती है, they are the vertebral column. तो human are also vertebrates. ठीक है. जिनके भी vertebral column होती है उन्हें vertebrates कहेंगे. अब vertebrates की liver cells जो होती हैं, जो हमारी liver होती है उसकी cells में अगर आपका poison और drugs हैं, ठीक है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन भी होता है, मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है. अगर उसे लार्ज अमाउंट में हम यूज़ करते हैं तब उसे ड्रग्स कहेंगे. ठीक है. अगर ड्रग्स या पॉइजन आपके ब्लड वगैरह में बहुत ज़्यादा है तो लिवर की जो सेल्स हैं, लिवर की सेल्स में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उससे पॉइजन और ड्रग्स को हमारी बॉडी से
एक्सक्रीट करवाने का काम करेगा, निकालने का काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइंग मतलब टॉक्सिन को हटाना। ओके, टॉक्सिन मतलब एक तरह से पॉइजन, एक तरह से आपकी ख़राब चीज़ जो आपकी बॉडी में जहर बन रहा है। ओके, so SCR help out in detoxifying many poison and drugs from the liver cell of vertebrates. Everybody clear about, I think everybody would be clear about the functioning of endoplasmic reticulum. Now we will move forward the next organelle, that is Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus are few vesicle like things, vesicle you can say like these ball like structures. Okay, these are the Golgi apparatus inside the cytoplasm. This was first described by Camillo Golgi. कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको पहली बार समझाया था, तो इन्हीं के नाम पे ये गोल्गी एपरेटस नाम रखा गया। ओके, सो दीज वेसिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, इनके बाहर मेम्ब्रेन बनी हुई है और ये अरेंज रहते हैं पैरेलली, एक दूसरे के साथ पैरेलली लगे हुए हैं। ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है इसे हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। ओके, सिस्टर्न्स, and these are associated with the endoplasmic reticulum also. endoplasmic reticulum से ये वेसिकल्स जो गोल्गी एपरेटस है ये चिपके हुए रहते हैं। क्यों, अभी आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि गोल्गी एपरेटस का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। जस्ट इमेजिन अ डिलीवरी बॉय। ओके, you order something from an online site and some whatever you have ordered, some delivery person is going to pack that thing. पैक क्यों कर रहे हैं, उसे पहले पैक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो जो सामान आप तक पहुंचाने के लिए अगर वो डैमेज ना हो, रास्ते में कोई उसमें ख़राबी ना है, तो उसको अच्छी तरह से पैकिंग करेंगे पहले, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिस्पैच टू यू, आप तक लेके आया जाएगा। तो यही चीज़ गोल्गी एपरेटस भी करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया है तो वो प्रोटीन को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए गोल्गी एपरेटस उसको हेल्प करेगा। ओके, सो अगर सेल के अंदर भी वो चीज़ें ले जानी है या बाहर भी ले जानी है किसी को भी, तो वो सब आपका गोल्गी एपरेटस काम करवाएगा। एक और काम है गोल्गी एपरेटस का, दैट इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज वेसिकल ऑल्सो, वो स्टोरेज का भी करता है। मॉडिफिकेशन का भी कोई चीज़ पहुंचा रहा है तो इसका मतलब उस चीज़ को किसी जहाँ पे पहुंच रही है वहाँ पे उस चीज़ का मॉडिफिकेशन होगा ना, आगे बढ़ेगी, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी। अब पैकेजिंग का तो करता ही है। और कुछ वेसिकल्स जो हैं सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज वगैरह को आपके कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़ दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम बनाने का भी काम में हेल्प आउट करवाता है गोल्गी एपरेटस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर लाइजोसोम्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। लाइजोसोम होते क्या वो आपको समझ आ जाएगा, तो ये याद रखना, गोल्गी एपरेटस लाइजोसोम को बनाने में भी हेल्प आउट करवाता है। देयर इज़ अ नोट इन दिस, when Golgi apparatus has been described by Camillo Golgi. Camillo Golgi was working on the Golgi apparatus. At that time he carried out a method of staining. Staining मतलब कलर करने का। जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम पहले स्टेन करते हैं उसे, ताकि उसे हम अच्छी तरह से देख पाएँ। तो कैमिलो गोल्गी ने एक मैथड निकाला था जिसमें वो नर्व और सेल स्ट्रक्चर्स को स्टेन करते थे बाय अ वीक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसका, उससे स्टेन करते थे। तो दिस मैथड हैज़ बीन कॉल्ड एज ब्लैक रिएक्शन। इसे क्या बोला गया? ब्लैक रिएक्शन। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एवरीबडी क्लियर? सो इसे याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस रिएक्शन हैज दिस स्टेनिंग मैथड हैज़ बीन कॉल्ड एज ब्लैक रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट organelle, that is lysosome. Okay, so lysosomes are also some these vesicle like structures, और they are having membrane. ये membrane इनके बाहर बनी हुई है। membrane से ये होता है कि जो भी आपका चीज़ है वो अंदर की साइड रहेगी, बाहर के उससे बची रहेगी। ओके, now inside this membrane there are many
एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को पचाने का काम करते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर. अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मैंने आपको काम बताया था दैट दे डाइजेस्ट, वो किसी भी चीज़ को पचाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं उसे, और उस वो कोई भी चाहे हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल. अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक word is being used by the chemistry. In chemistry, whatever that is made up of carbon, that is called as organic material. Okay, so living चीज़ों के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपका कार्बन होता ही है, तो they all are organic material. Whichever organic material will come, that can be digested by lysosomes. Okay, इतने strong digestive enzymes होते हैं. तो एक एग्जाम्पल इसका स्ट्रॉन्गनेस का, दैट इफ़ द सेल गेट्स डैमेज, सेल के अंदर कुछ डैमेज हो गया, कोई टूट फूट हो गई है, तो नाउ दिस सेल इज़ नन ऑफ एनी यूज़. वो सेल किसी काम की नहीं है, वो इधर उधर ख़राब करेगी और दूसरी सेल्स को भी. सो वही सेल के अंदर का लाइसोसोम, उसी सेल के अंदर का लाइसोसोम फट जाएगा. ठीक है, फट के सारे उसके डाइजेस्टिव एंजाइम, जब वो फट गया तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे. अब मैंने क्या बताया था, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हर ऑर्गेनिक चीज़ को डाइजेस्ट कर देते हैं. अब ये सेल भी तो ऑर्गेनिक चीज़ है, तो ये सबके जो सेल को पूरी तरह से खा लेगा, डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने की वजह से इसका नाम रखा गया सुसाइडल बैग. सुसाइड हम वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब कोई इंसान अपने आप को मारता है. तो सेल ने, लाइसोसोम ने अपनी ही सेल को खा लिया, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई डैमेज हो गया था, वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसने अपनी सेल को डाइजेस्ट कर दिया. इसलिए इसको क्या बोला गया? सुसाइडल बैग्स. ओके, नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स, दैट फर्स्ट थिंग, इफ सम ऑर्गेनल ऑफ द सेल गेट्स worn out मतलब ख़राब हो जाता है, कुछ खराबी आ गई उसमें. नाउ दिस लाइसोसोम इज़ गोइंग टू डाइजेस्ट दैट ऑर्गेनल ऑल्सो. अगर कोई राइबोसोम मान लिया कोई ख़राब हो गया, तो उससे डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम. अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मटेरियल कोई सेल के अंदर घुस गया, तो उसको डाइजेस्ट कर लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर देगा और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा. ठीक है, तो कोई भी आपके अंदर बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो सेल में लाइसोसोम उस बैक्टीरिया वगैरह या उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कैपेबल रहता है. ओके, तो एवरी सेल इज़ हैविंग दैट. नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़, आप कह सकते हो आपकी लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आती है. ठीक है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए यूज़ की जाती है. तो इलेक्ट्रिक स्टेशन जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी, वो आपके लोकेलिटी का पावर हाउस है. सेम एज इट इज़ इनसाइड अ सेल देयर इज़ एन ऑर्गेनली वेयर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज़ बीन मेड. जो एनर्जी है, जो पावर है, वो बनती है सेल के अंदर कहीं पे. उस जगह को, उस ऑर्गेनली को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so that's why it is called as powerhouse of the cell. Now, like in our house, electricity in the form of electricity energy is used. Inside the cell, electricity cannot be used. Electricity के रूप में हमारी cells use नहीं कर सकती एनर्जी को. So they have a different energy type that is called as ATP. हमारी बॉडी, जो हमारी सेल है, वो एनर्जी ATP की फॉर्म में यूज़ करती है. ATP full form is adenosine triphosphate. Okay, so everything that is functioning in our body, that ribosome is making the protein, so they need some energy. That energy is ATP, and that energy is made by the mitochondria. Okay, so we can also say that ATP is the energy currency of the cell. जैसे इंडिया में करेंसी कौन सी चलती है? रुपी. हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो किस फॉर्म में करेंसी बनाती है एनर्जी की? ATP की फॉर्म में. ओके, वन मोर थिंग, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ हैविंग मेम्ब्रेन, बट इट इज़ हैविंग डबल मेम्ब्रेन. 2 मेम्ब्रेन से बना होता है ये. 2 मेम्ब्रेन है.
Second thing, it is called as semi-autonomous organelle. Now what is semi-autonomous organelle? Any organelle inside the cell, आपको पता है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी के सारे कामों को करवाने में हेल्प आउट कर जाता है, क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी काम करवाया नहीं जा सकता। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। तो डीएनए से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइबोसोम्स प्रोटीन बना सकता है। सो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना प्रोटीन बना सकता है खुद से, तो इसलिए उसको क्या बोला गया, सेमी ऑटोनॉमस। सारी चीज़ें अपने आप नहीं कर सकता, बट कुछ चीज़ें अपने आप से वो कर सकता है, इसलिए सेमी आधा आधा इसलिए बोला गया, क्योंकि पूरी तरह से नहीं है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हमारे अगर बॉडी में कोई है तो वो सिर्फ न्यूक्लियस है। ओके, so mitochondria is called as semi-autonomous organelle because it it contains its own DNA and ribosome, and because of this it can make its own protein. Okay, this is it. Now the second thing is its outer layer is porous. इसकी जो बाहर की लेयर है वो पोरस होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ सकती है। और अंदर की जो लेयर है वो थोड़े फोल्ड्स में होती है, जैसे कि ऐसे फोल्ड्स बने हो। ठीक है, फोल्ड्स क्यों है, ताकि एरिया बढ़ जाए, ताकि एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर बने। ओके, सो दिस इज़ व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया इज़। द नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड इज़ द ऑर्गेनल दैट इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। हमने इतनी सारी जो ऑर्गेनल्स की बात करी है, तो उसमें सारे आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। ओके, इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस। आपको बताया था सेमी ऑटोनॉमस, जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम हो, क्योंकि वो अपना प्रोटीन खुद से बना सकता है, तो आधे काम वो खुद अपने कर सकता है, इसलिए उसे सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं प्लास्टिड को भी। तो दो ऑर्गेनल्स हो हैं आपके पास, दोज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, नाउ प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर having a pigment called chlorophyll. Chlorophyll, everybody know it. It is a green pigment due to which the leaves are green. जिसकी वजह से green जो leaves green है वो chlorophyll की वजह से है, तो उसमें chloroplast present है। And due to this chlorophyll, the photosynthesis happens. Photosynthesis is the process of making own food by the plants. Very good. Now the next type of plastid is chromoplast. You would have seen red color flower, yellow color flower. That is due to the color. That color comes from the chromoplast. So red, yellow, orange pigments are found from the chromoplast. Why this color is there? Because flower has to be colorful to attract the insect. Insects को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए chromoplast flowers में present होते हैं। थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट। इट इज़ नॉट हैविंग एनी कलर, इसमें कोई कलर नहीं होता। सो इट इज़ यूज फॉर द स्टोरेज, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई कलर का काम नहीं, कुछ नहीं है, so कोई ना कोई तो काम करेगा, स्टोरेज का काम करता है। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है अपने अंदर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। सो क्लोरोप्लास्ट, you can see a structure over here. Chloroplast is called as kitchen of the cell. किचन किसे कहते हैं हमारे घर में? जहाँ पे खाना बनता है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनता है प्लांट का, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। जस्ट रिमेंबर इट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। नाउ we are going to see its structure. I have told you that it is having double layer. So एक बाहर की लेयर है, एक अंदर की लेयर, दिख रहा है? This is the outer layer, it is the inner layer. Okay. Now you can see that here यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है? ये आपका जो खाली ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जो फ्लूइड मटेरियल, जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे स्ट्रोमा किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इसमें स्टैक्स लगे होते हैं, आपको दिख रहा है एक कॉइन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दे आर कॉल्ड एज थाइलोकॉइड।
और जब ये थैलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लग जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, एक साथ में क्या कहते हैं, ग्रैनम। तो बहुत सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक लगे होते हैं तब उसे कहते हैं ग्रैनम, और इकलौते को क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड। ओके, सो यू कैन सी इट हेयर, दिस इज वन थाइलाकॉइड, देयर दिस इज सेकेंड थाइलाकॉइड, दिस थर्ड, ऐसे करके एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड लगे हुए हैं, तो इन्हें ग्रैना कह रहे हैं या ग्रैनम, ग्रैना याद कर लीजिए आप। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइलाकॉइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अंदर, जैसे आपके किचन में भी, पूरे किचन में आप खाना नहीं बना रहे, आप एक्चुअल में कहाँ पे खाना पकाते हैं, राइट, ऑन द स्टोव। सेम एज इट इज़ थाइलाकॉइड के अंदर खाना बनता है, ठीक है। तो पूरे क्लोरोप्लास्ट में खाना नहीं बन रहा, थाइलाकॉइड में बन रहा है। ओके, क्लियर अबाउट इट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट ऑर्गेनली, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल. Vacuole is, you can say, it is an empty space in which you can store something. Like imagine your house. अपने घर को imagine करो, एक स्टोर हाउस होता है हमारे घर में जहाँ पे हम हर तरह की चीज़ को स्टोर कर सकते हैं. सेम इन द सेल इज वैक्यूल. Just there is a difference between animal cell and plant cell, that animal cell contains small vacuoles, animal cell में छोटे vacuole होते हैं, and the plant cell contain large size vacuole. As you can see in this picture also, this is the vacuole, you can see blue color structure, this is a large vacuole. Okay, this is the vacuole, this is large, it is in plant cell. Okay, in some plant cell it occupies around 50 to 90% of the cell volume. मतलब इतना बड़ा होता है कि आधे से भी ज़्यादा स्पेस को वैक्यूल ही घेर के रखता है. ओके, सेल प्लांट सेल वैक्यूल इज फिल्ड अप ऑफ सेल सैप. सेल सैप मीन्स sugar solution, water, everything is stored inside it, so that is called as sap. Okay, vacuole. Now coming to the next, its function. What are the function of vacuoles then? I told you one thing is it provides turgidity. Turgidity मतलब swell, फूली रहती है सेल बिकॉज ऑफ द वैक्यूल, क्योंकि उसने स्टोर कर रखा है तो सेल को फुला के रखती है. एंड रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर जो है किससे मिलेगा, वैक्यूल की वजह से मिलता है सेल को. Third thing is it store many things like amino acid, whatever that is manufactured inside the cell, it is stored in the very good vacuole. Okay, then you would have seen the food intaking by the amoeba, right? So in this picture you can see that here that amoeba is taking inside the food by pseudopodia, right? Pseudopod is, they are calling it as pseudopod, but it is pseudopodia. Okay, so it is taking inside the food. This food come inside a vacuole. This is a food vacuole inside which the food is going to be digested. तो ये एक तरह से टेम्प्रेरी स्टमक की तरह काम कर रहा है. अभी ये वैक्यूल स्टमक बन गया है इसकी बॉडी में. जब ये खाना पच जाएगा, व्हेन इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड, जब इसे बाहर निकालना होगा जो वेस्ट बच गया है, सो वो भी वैक्यूल से बाहर चला जाएगा. ठीक है, पानी एक्स्ट्रा है या फिर कोई वेस्ट बना है तो वो सब सेल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देती है. सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट हैपन. हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म take in food, few of them take in food by the help of vacuole and also digest it and take out this waste or excess water through this vacuole only. Okay, so this was all about the cell, the fundamental unit of our life. Okay, these we have talked about the cell organelles also. This chapter is over now. Okay, thank you.